Okay, let me share my screen as well. Screen one. Yeah, sure. Okay. ओके, सो अभी तक क्या हुआ है कि भीष्मदेव लास्ट वर्ष में हमने देखा, प्रभु जी ने समझाया उसके आगे के वर्ष में भी, कि भीष्मदेव हैज जस्ट लेफ्ट हिज बॉडी एंड अभी उसके बाद का क्या सीन है, उस पे ये सारे ये वर्ष है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, टेक्स्ट 44। संपद्यमानम अज्ञान्या भीष्णं ब्रह्मणि निष्कले सर्वबभूवुस्ते तूष्णीं वयासीवं दिनात्यये। Knowing that Bhishmadev had merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute, all present there become silent like birds at the end of the day. कोई परपट पड़ेगा? Anyone wants to read? I can read, Prabhuji, but I apologize in advance for the disturbances, if any. हाँ, कोई बात नहीं होता जी। To enter into or become merged into the unlimited eternity of Supreme Absolute means to enter the original home of the living being. The living being are all component parts and parcels of the absolute personality of Godhead, and therefore they are eternally related with Him as the servitors or and to serve and the served. The Lord is served by all His parts and parcel, and as the complete machine is served by its parts and parcels. Any part of the machine removed from the whole is no longer important. Similarly, any part and parcel of the absolute detached from the service of the Lord is useless. The living beings who are in the material world are all disintegrated parts and parcels of the supreme whole. They are no longer as important as the original parts and parcels. There are, however, more integrated living beings who are eternally liberated. The material energy of the Lord, called Durga Shakti, or the superintendent of the prison house, takes charge of the disintegrated parts and parcels. And thus, they undergo a conditioned life under the law of material nature. When the living being becomes conscious of the fact, he tries to go back home, back to Godhead, and thus the spiritual urge of the living being begins. The spiritual urge is called Brahma Jignasa, or inquiry about Brahman. Principally, this Brahma Jignasa is successful by knowledge, renunciation, and devotional service to the Lord. Jnana or knowledge means knowledge of everything or Brahman, of Brahman. The supreme renunciation means detachment of material affection, and devotional service is revived by practice of the original position of living being. The successful living being who are eligible to enter into the realm of absolute are called jnanis. Jnanis, the yogis and the bhaktas. The jnanis and the yogis enter into the impersonal rays of the Supreme. But the bhaktas enter into the spiritual planet known as the Vaikunthas. In these spiritual planets, the Supreme Lord as Narayana predominates, and the healthy and unconditioned living beings
live there by rendering loving service to the Lord in the capacity of servants, friends, parents, and fiance. The unconditional living being enjoy life in full freedom with the Lord, whereas the impersonalists, jnanis, and the yogis enter into the impersonal glowing effulgence of the Vaikuntha planet. The Vaikuntha planets are all self illuminating like the sun, and the rays of the Vaikuntha planet are called Brahma Jyoti. The Brahma Jyoti is spread unlimitedly, and the material world is but a covered portion of an insignificant part of the same Brahma Jyoti. This covering is temporary and therefore it is sort of illusion. Brahmadeva, Bhishmadev, as a pure devotee of the Lord, entered the spiritual realm in one of the Vaikuntha planets where the Lord, in his eternal form of Parthsarthi, predominates over the unconditional living beings who are constantly engaged in the service of the Lord. The love and affection which binds the Lord and the devotees are exhibited in the case of Bhishmadev. The Bhishmadev never forgot the Lord in his transcendental features as the Parthsarthi, and the Lord was present personally before Bhishmadev while he was passing in the transcendental world. This is the highest perfection of life. Hari Bol. थैंक यू माता जी। ओके, तो ये वर्स क्या बता रहा है कि जब भीष्मदेव merge into the unlimited energy of the supreme, सारे लोग जो भी वहां पे प्रेजेंट्स थे, सारे सेजेस, पांडवास, डेमिगॉड्स, जो भी आए हुए थे, नारद मुनि, सब सब जितने भी थे वहां पे, सब लोग बिकम साइलेंट लाइक अ बर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि संपद्यमानम, इसका मतलब है हैविंग मर्ज इनटू, अग्नाया, इसका मतलब है आफ्टर नोइंग दिस, भीष्मन अबाउट श्री भीष्मदेव, ब्रह्मणि मीन्स इनटू द सुप्रीम एब्सोल्यूट, निष्कले मीन्स अनलिमिटेड, सर्वे मीन्स ऑल प्रेजेंट। सो हमें पता है कि सर्व, हम बोलते हैं ना, सर्व सर्व तो इजी वर्ड है, ऑल प्रेजेंट। बभुवुते, all of them become tushni, tushni means silent, vaya siv eva, likes birds, and dina atyay means at the end of the day। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जब भीष्मदेव लेफ्ट द बॉडी, सब लोग एकदम साइलेंट हो गए क्योंकि सब लोग शोक में चले गए थे। यानी इसकी कंपैरिजन की हुई है कि लाइक बर्ड्स एट द एंड बिकम, लाइक बर्ड्स बिकम साइलेंट एट द एंड ऑफ द डे। हमने देखा है कि जो बर्ड्स है वो इवनिंग में, सुबह सुबह 4 4 4:30 5 बजे से वो स्टार्ट हो जाते हैं, अपने आवाज करते हैं, डिफरेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिस। लेकिन इवनिंग के टाइम पे वो सब शांत हो जाते हैं। तो वो जो सन्नाटा छा जाता है, वो सन्नाटे की बात यहाँ पे हो रखी है, ठीक है। तो इस वर्ष में क्या क्या कवर कवर करने वाले हैं हम लोग कि यहाँ पे बताया कि भीष्मदेव मर्ज इनटू द अनलिमिटेड इटर्निटी ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट। दूसरी चीज बताई है कि पार्ट एंड पार्सल की बात हुई है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ठीक है। तीसरा बताया दुर्गा देवी की बात हुई है, उनका क्या रोल है। फिर बात हुई है कि सोल होती है वो कैसे जगती है, यानी ब्रह्म जिज्ञासा की बात हुई है। उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा कैसे, यानी कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं, पाथ क्या है उसको सक्सीड होने का, वो बताया। उसके बाद जो ब्रह्म जिज्ञासा सबको एक बार पता चल गया, और उसको जो भी पाथ बताया गया है उसको फॉलो करने पे क्या डेस्टिनेशन मिलता है, वो बात हुई है। और लास्ट में भीष्म देव का डेस्टिनेशन क्या था, वो बात हुई है। अभी यहाँ पे हम देखने जाए तो यहाँ पे ऐसा बता दिया है कि भीष्मदेव हैज मर्ज इनटू द अनलिमिटेड इटर्निटी ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट। उसको रीड करने से ऐसा लगता है कि भीष्मदेव कहाँ ब्रह्मन में चले गए, यानी ब्रह्म ज्योति में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव ने कभी भी नहीं बोला था कि मुझे ब्रह्म ज्योति में, यानी उनको वो इम्पर्सनल फॉर्म पे तो भगवान के वो मेडिटेट कर ही नहीं रहे थे। क्योंकि हमने लास्ट जो
10 वर्ष देखे, 10 या 12 वर्ष, जिसमें भीष्म देव भगवान की जो स्तुति कर रहे हैं, यानी भगवान उनके सामने थे, फिर भी उन्होंने भगवान की किस रूप का मेडिटेट कर रहे थे, कि जो भगवान वॉर में थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उस टाइम पर उन्होंने जो अपना पीताम्बर पहना हुआ था येलो कलर का, और जो सारे जो कृष्ण वो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, वो उस फॉर्म को मेडिटेट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो फुलिश लोग होते हैं ना, जो अज्ञानी होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता, वो ऐसा सोचते हैं कि भीष्म देव को मुक्ति मिल गई, यानी उनके हिसाब से तो सायुज्य मुक्ति मिली। लेकिन सायुज्य मुक्ति कहाँ पे जाती है? सायुज्य मुक्ति यानी ब्रह्मन रियलाइजेशन, जो सबसे फर्स्ट वाला है, जिसमें भगवान की सिर्फ ज्योति होती है, इफल्जेंस होता है, ठीक है, और भगवान का पर्सनल फॉर्म नहीं होता है। तो सबको ऐसा लगता है, लेकिन हम डिवोटीज को पता है, और इस प्रोसेस में आने के बाद हमें पता चला है कि जो भीष्म देव थे उनको ये वाली यानी सायुज्य मुक्ति नहीं मिली थी। वो कृष्णा की दूसरी लीला में चले, यानी ही एंटर इनटू द सेकंड लीला ऑफ द कृष्णा, क्योंकि क्या है कि कृष्णा की लीला जो होती है ना, वो इटर्नली चलती रहती है, ठीक है। और जो भी ये हमें हमें जो ऐसा लग रहा है कि यानी हमें तो पता है, लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि जो सोचते हैं कि भीष्म देव या ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, यानी सायुज्य मुक्ति मिल गई, तो प्रभुपाद ने फर्स्ट लाइन में उनको काट दिया है, कि यहाँ पे सीधा बोल दिया है, टू एंटर इनटू और बिकम मर्ज इनटू द अनलिमिटेड इटर्निटी ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट मीन्स टू एंटर द ओरिजिनल होम ऑफ द लिविंग बीइंग। तो अपना ओरिजिनल होम कौन सा है? गोलोक वृंदावन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। तो प्रभुपाद ने सबसे पहले ये प्रभुपाद की जब अब हम भगवत गीता या उनका कोई भी बुक्स पढ़ लो, तो वो टू द पॉइंट रहते हैं, और सबसे उनकी ये बात है ना, मुझे पहले उतनी नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उनके बारे में, और उनकी बुक्स जो पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं यार, मैं सीख रहा हूँ जो भी, तो उसमें मुझे इतनी अच्छी लगती है इनकी ये चीज है कि प्रभुपाद है ना टू द पॉइंट रहेंगे, और कुछ चीज ऐसी होगी कि जो आगे से रिकॉल करवानी है, तो वो पहले से ही लेके आएंगे। कुछ वर्सेस ऐसे हो गए कि वो अगर कंटिन्यूअस चलते हैं, तो हमें रिफर तो कर ही देंगे कि हाँ ये पिछले वर्ष से चला आ रहा है, और सेंटेंस भी वैसे ही स्टार्ट होगा, एडिशनली ऐसा कुछ हो गया है, तो उसका मतलब पिछला वाला वर्ष चालू है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है। तो ये प्रभुपाद की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है, कि जिससे हमें पता चले कि क्या हो रहा है, यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन सबको मिल रही है। या तो ये हमारे प्रभुपाद है, अगर ये प्रभुपाद नहीं होते तो पता नहीं हम क्या क्या इंटरप्रेट करते, जैसे जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो भगवान की लीला होती है वो इटर्नली चलती है, ठीक है। तो भीष्म देव यहाँ से गए, यानी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले गए, ठीक है, तो कृष्ण लोक में चले गए। तो भीष्म देव जब उन्होंने बॉडी अपनी छोड़ी, तो उन्होंने यहाँ पे एंड में बताया गया है कि he his transcend Bhishmadev never forgot the Lord in his transcendental feature as पार्थ सारथी। तो भीष्मदेव को वही फॉर्म, यानी पार्थ सारथी फॉर्म ही अच्छा लग रहा था, वो उसको भूल ही नहीं पा रहे थे। और भगवान ने भी बोला है कि अंत कले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कले मरम, ठीक है। तो जब जब आप एट द एंड ऑफ योर लाइफ आप जो भी सोचोगे, आप वही पाओगे, ठीक है। तो उन्होंने भगवान को पार्थ सारथी फॉर्म में याद रखा व्हेन ही वाज लिविंग द बॉडी। तो वो भगवान के उस रूप को उस रूप में वो पहुंच गए, ठीक है। और दूसरी चीज यही है कि भीष्म देव तो पहले से ही नित्य सेवक थे, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता कि वहां पे चले गए तो फिर स्टेबल हो गए, फिर वहां पे गोलोक में रहेंगे, नहीं, वो दूसरी लीला में चली गई। यानी जैसे हमने बोला ना कि भगवान की लीला कंटिन्यूअसली चलती है, यहाँ पे अगर
महाभारत खत्म हुई तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि महाभारत दूसरी जगह पे नहीं चली, नहीं, कोई और प्लेनेट पे भी चलती होगी। तो भीष्मदेव फिर वहां पे चले गए, फिर वहां से अपना सारा कुछ जो भी वापस से जो भी लीला करनी थी भगवान के साथ एज अ डिवोटी की, वो वहां पे वो वापस से स्टार्ट कर दिया। तो जैसे उसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे सनसेट हो गया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सन चला गया है, नहीं। अगर इंडिया में जाओगे तो अभी भी वहां पे सनलाइट होगी, ठीक है। तो यानी वहां पर भी यानी यहाँ पे सनसेट हुआ और इंडिया में सन अभी भी है, इसका मतलब वहां पे लीला चालू हो गई, उसको ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे थोड़ा बताया है कि लॉर्ड इज सर्व्ड बाय ऑल हिज पार्ट एंड पार्सल एज द कंप्लीट मशीन इज सर्व्ड बाय इट्स पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल, क्यों क्यों हमें भगवान का, हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो पार्ट यानी भगवान के अंश है, वो तो समझ में आता है, लेकिन पार्सल क्यों बोला गया है? क्योंकि भगवान ने जो भी बनाया है हमें पार्सल है, यानी पूरा का पूरा बनाया है। ऐसा नहीं है कोई कोई अंदर चीज नहीं डाली है, ठीक है। यानी सॉलिडली हम ऑपरेट कर सके खुद को, वैसा बनाए। आप कोई किसी चीज की, कोई भी लिविंग एंटिटी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कि अगर बंदर का ले लिया, लायन ले लिया, कुछ भी ले लो, तो वो पूरा पैकेज बनाया है। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम ईबे से फॉर एग्जांपल ट्रेड में डॉलर करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ पावर केबल भी आएगा और उसके साथ रिमोट भी आएगा और इसके साथ इंस्ट्रक्शन भी आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आती है, ऐसा नहीं है कि चलो पावर केबल नहीं भेजा। अगर पावर केबल भेजा ही नहीं है तो वो काम की ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम पार्सल है, यानी पूरा का पूरा पूरा पैकेज बनाया है हमें, उसमें हम पूरा का पूरा अपने आप से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पार्ट एंड पार्सल बोले जाते हैं। दूसरी चीज की यहाँ पे आगे बताया गया है कि हमारी जो रियल पोजीशन है, हमें कृष्णा को सर्व करना है, ठीक है। और अगर हम सर्व नहीं करते हैं तो और डिटैच हो जाते हैं तो देन वो बोला गया है कि वी आर यूजलेस, ठीक है। तो अगर हम कृष्णा को सर्व नहीं कर रहे हैं तो वी आर टोटली यूजलेस। जैसे हम एरोप्लेन होता है तो उसमें नट बोल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो नट बोल्ट्स में जो नट बोल्ट्स होते हैं उसको भी एरोप्लेन ही बोलते हैं हम, ठीक है। अगर वो नट बोल्ट्स निकल जाए, यानी अ, बाजार में देखने जाए तो उसकी कोई 5-10 डॉलर की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर उसको हम कोई एक सही जगह पे, जहाँ पे उसको इंस्टॉल करना है, वो अगर वहां पर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर वहां पे वो अपनी जगह पे नहीं है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो वही है, अगर हमारी इससे क्या समझ आता है कि हमारी ओरिजिनल पोजीशन है कृष्णा की सर्विस, ठीक है। अगर हम उसमें है तो वी आर वैल्यूएबल, अगर हम उसमें नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे सीधा प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि हमारी फिंगर होती है ना, उस पर छोटा सा स्क्रैच लग जाता है, यानी कटती है नाइफ से थोड़ी सी हल्का से, तो हम उस पर पैसे बर्बाद करना स्टार्ट कर देंगे, बोले कि नहीं मैं इसको कैसे भी करके उसको सही कर दूं। लेकिन मशीन में हाथ आ गया और पूरी उंगली ही कट गई तो हम उसकी केयर नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि अभी वो बॉडी से निकल यानी अलग हो गई है अपनी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर जब तक हमारे साथ अटैच है बॉडी के साथ तब तक उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यानी अगर हम कृष्णा की सर्विस में एंगेज है तो हमारी वैल्यू है, अगर नहीं है तो उसका मतलब ये है कि हम फॉलन सोल है। और हमने पता है कि फॉलन सोल क्या करती है, यानी जो डिमोनियक नेचर होते हैं उनका क्या हालत होती है। जब वो मरते हैं तो यमदूत आते हैं और फिर उनको हेलिस प्लैनेट में ले जाते हैं और वो दे गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट। लेकिन भगवान का नाम, वो अगर हम लेते हैं तो पहली तो बात है कि भगवान ने बोला है कि एक एक ही बार में अगर मेरा कोई नाम दिल से लेता है तो हिल गेट, मैं उसको मिल जाऊंगा, ठीक है। जैसे
और उसके अलावा भगवान के नाम की पोटेंसी कितनी है वो तो हमें वो अजामिल की स्टोरी से पता ही है सबको, कि अजामिल ने पूरे सारे पाप किए थे। जब मरने का टाइम आया और उसने जो यमदूत देखे और अपने बेटे को बुलाया क्योंकि उससे अटैच था, तो अ, तो फिर यमदूत कुछ नहीं कर पाए और फिर विष्णुदूत आए और फिर उनको थोड़ी और लाइफ मिली और फिर उन्होंने आई थिंक हरिद्वार गए थे और उस वहां पे जाके उन्होंने काफी टाइम तक उन्होंने भगवान का नाम किया और फिर वो गो बैक टू गॉड हेड। अभी आगे बताया गया है कि जो लोग भगवान की सर्विस नहीं करते हैं उनका क्या होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि दुर्गा शक्ति यानी दुर्गा माँ आती है। दुर्गा माँ यानी भगवान की एक्सटीरियर एनर्जी, ये भी भगवान की डिवाइन एनर्जी ही है। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे एंजॉय करना है उसके लिए दुर्गा माँ सारा कुछ यानी थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर उसमें आके फंसते हैं लोग। और जो भगवान की सेवा करते ही नहीं है और भगवान का नाम भी नहीं देते, उनका क्या होता है कि वो मटेरियल यहाँ पे एक जेल में सड़ते हैं, यानी कैदी की तरह बन जाते हैं, कैदी बन के ही रह जाते हैं। ठीक है। तो हमें कुछ भी करके हमें कुछ भी करके तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें भगवान का नाम हर रोज देना चाहिए। अगर नहीं दिए तो वी विल स्टक इनटू दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड वी वॉन्ट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट वन। ठीक है। तो लेकिन कुछ टाइम पर क्या होता है कि कुछ लिविंग एंटिटीज क्या होती है कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट, उनको पता चलता है कि नहीं, मुझे भगवान के घर वापस जाना है। तो तब जाके उनकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और जो जो होती है, जो स्पिरिचुअल अर्ज, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा, यानी इंक्वायरी अबाउट भगवान। तो भगवान कौन है, और ये ब्रह्म जिज्ञासा हमें कैसे हमारी जागृत होती है। तो जैसे हम बुक पढ़ते हैं भगवत गीता, यानी भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ी, या कोई डिवोटीज को हमने सर्व कर दिया, हमें पता ही नहीं था और कर दिया, और तो जो सुकृति मिलती है उससे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। और उससे क्या होता है कि हमें नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाती है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, वी हैव टू सर्व कृष्णा, एंड आवर गोल इज टू गो बैक टू गॉड हेड। और ये सारी भगवान की मर्जी होती है, तब जाके हम ये सारा कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। श्रीला प्रभुपाद तो क्या बोलते हैं कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि टुमारो ही विल बी अ डॉग्स बॉडी, यानी आज मर गया और पूरा दिन पूरी लाइफ में तो ऐसा नहीं बोलेगी कि एट द एंड ऑफ द लाइफ उसको अपने कुत्ते से प्यार था तो नेक्स्ट बॉडी कुत्ते की मिल गई। ठीक है। तो लेकिन ये जो ब्रह्म जिज्ञासा होती है उसको हम कैसे, यानी कैसे आगे बढ़ाए। ठीक है। तो उस यहाँ पे तीन चीजें बताई गई है। ठीक है। एक तो है नॉलेज, यानी भगवान का नॉलेज, भगवान कौन है, भगवान की लीलाएं क्या है वो उसके बारे में जानो। फिर है रिनाउंसिएशन, तो डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल सेंसेस एंड अटैचमेंट टू द कृष्णा, एंड द डिवोशनल सर्विस ऑफ द टू द लॉर्ड। तो डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड क्या है, चैंटिंग, रीडिंग्स, टेम्पल सर्विस, प्रीचिंग। अगर वो सारी करते हैं तो हमें आपो आप भगवान के लिए लव डेवलप होगा और वी कैन वी विल बी एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड हेड। और फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि और एक चीज हमें समझनी चाहिए कि ये जो होगा, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट होगा, तो हम जो साधना भक्ति करेंगे उससे स्टार्ट होगा। जैसे कि साधना भक्ति कैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे हमें थोड़ा सा, जैसे मैं मेरी बात बताऊं, तो मुझे महालक्ष्मी माता जी मिले थी और उन्होंने बोला कि ऐसे क्लासेस होते हैं। ठीक है। आप जाके एक दो अटेंड करो, आप नहीं तो अपने लिए, नहीं तो अपने बच्चों के लिए अटेंड करो, लेकिन एक बार जाओ और देखो। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं चलो देखते तो है, मेरे लिए नहीं तो मेरे बच्चों के लिए तो देखते हैं। तो यानी मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और फिर वहां पे गए तो अपने विष्णु प्रियेश्वर प्रभु जी क्लास ले रहे थे, तो वो देखी तो हमने भक्ति विस्तार स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि भाई चैंटिंग भी इंट्रोड्यूस करो। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि
फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है। तो हम उसको फॉलो करते गए, फिर उन्होंने बोला बताया कि टेम्पल सर्विस करो, कोर्स ज्वाइन करो। तो हम ये सारा करते गए और धीरे धीरे हमें नॉलेज मिलता गया। तो अभी हमें क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है। लेकिन तो ये है ना, श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में 30 नंबर के वर्स में नारद मुनि बोलते हैं कि माय डियर किंग, वन हैज टू फिक्स हिज माइंड ऑन कृष्णा बाय एनी मीन्स, that is called Krishna consciousness. It is the duty of the Acharya, the spiritual master, to find the ways and means for his disciple to fix his mind on Krishna, and that is the beginning of sadhana bhakti. तो ये वैसे साधना भक्ति स्टार्ट होती है, और उससे हम स्लोली स्लोली हम वी कैन डेवलप लव फॉर कृष्णा। अभी आगे बताया गया है कि 3 टाइप के लोग होते हैं हु आर एलिजिबल एंटर इन द रियलम ऑफ एब्सोल्यूट, एंड उनको क्या बोलते हैं, ज्ञानीज, योगीज एंड भक्तर्स। अभी इन तीनों का डिफरेंट डेस्टिनेशन भी यहाँ पे बताया गया है कि जो ज्ञानीज होते और योगीज होते वो कहाँ पे जाते हैं, इम्पर्सनल रेज ऑफ द सुप्रीम। जैसे लास्ट टू लास्ट क्लास में विष्णु प्रियेश्वर प्रभु ने बताया था कि ज्ञानीज और योगीज, ज्ञानी होते वो ब्रह्म ज्योति में जाते, और योगीज होते वो परमात्मा रियलाइजेशन होती है, तो उनको भी कोई सर्विस करने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो देर आर सम चांसेस फॉर द ज्ञानीज, इट इज डेफिनेटली अ चांस, या वो वहां पे जाएंगे ब्रह्म ज्योति में, वो भगवान की कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो एक लाइट है, एनर्जी है उनके उनके हिसाब से। तो वो कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, और वो वापस आएंगे पृथ्वी पर। सैम केस योगीज के लिए भी होता है, लेकिन योगीज का थोड़ा डिफरेंट रहता है, और वो वापस आएंगे तो भी दे कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। एक्चुअली दैट्स अप्लाई टू बोथ ज्ञानीज एंड योगीज। बट भक्तों की बात करें तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे, वैकुंठास। वैकुंठ यानी भगवान का धाम है। वहां पे भगवान नारायण खुद बैठते हैं, और भी यहाँ पे बताया गया कि एंड द हेल्दी अनकंडीशनल लिविंग बीइंग्स लिव देयर बाय रेंडरिंग लविंग सर्विस टू द लॉर्ड इन द कैपेसिटी ऑफ सर्वेंट, फ्रेंड, पेरेंट्स एंड फियोन्सी। ठीक है, तो वहां पे जाके जो भी हमारा मूड होगा, वो मूड के साथ हम सर्विस करेंगे कृष्णा की। कुछ ये जो जो 5 भाव, 5 रसा बताया गया है, माधुर्य भाव, ठीक है, माधुर्य है, फिर दास्य भाव है, सांख्य भाव है, और 2 रसा है, मुझे याद नहीं है क्या है, मैं भूल गया सॉरी। तो या तो ये वाली ये सारी चीजें हैं। तो उन सबका यानी भक्त हो गए वो जाएंगे, भक्त हो गए वो जाएंगे वैकुंठा में। तो एंड दैट इज द हाईएस्ट, दैट शुड बी द हाईएस्ट गोल ऑफ अस, बिकॉज हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए। अगर हमें जो मुक्ति मिल गई ना, तो इट विल बी अ, इट इज नॉट गुड फॉर अस। व्हाट वी शुड आस्क कृष्णा, कृष्णा जहां पर भी रखो, नर्क में रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अगर हमें कृष्णा की सर्विस मिलती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड। अगर हम कृष्णा की सर्विस नहीं मिलती है, तो कहीं पर भी रह लो, इट इज टोटली यूजलेस फॉर अस। सो वी शुड प्रे टू कृष्णा, जहां भी रखो मुझे प्लीज एंगेज इन योर सर्विस, वही दैट इज द हाईएस्ट गोल। और जैसे लास्ट लास्ट पैराग्राफ में मैंने देखा कि भीष्मदेव को पार्थ सारथी फॉर्म में ही he attained the पार्थ सारथी फॉर्म ऑफ कृष्णा। तो अभी 7:33 हुए हैं, एक और वर्स कर ले, ये छोटा वाला ही है। हाँ, तो चलो नेक्स्ट कर ही लेते हैं। तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववदिता ससंसुहर साधवो राज्ञां खातपेतु पुष्पवृष्टय। Thereafter, both men and demigod sounded drums in honor, and the honest royal order commenced demonstration of honor and respect.
एंड फ्रॉम द स्काई फेल शावर्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, कोई ये वर्स पढ़ना चाहेगा? पर पढ़ेगा? But if nobody's there, I'm happy to read again. ओके ओके माता जी। Shall I go ahead? यस यस। Vishmadev was respected both by the human beings and by the demigods. The human beings live on Earth and similarly other planets in the Bhur and Bhuvar group of planets. But the demigods live in the Svar or the heavenly planets, and all of them knew Bhishmadev as a great warrior and devotee of the Lord. As Mahajana or authority, he was on the level of Brahma, Narada, and Shiva, although he was a human being. Qualification on par, sorry, Prabhuji. Qualification on a par with the great demigod is possible only on attainment of spiritual perfection. Thus, Vishmadev was known all over the universe, and during his time, interplanetary travel was affected by finer methods than the futile endeavors of mechanical spacecraft. When the distant planets were informed of the passing away of Brishmadev, all the inhabitants of the upper planets as well as of the earth dropped showers of flowers to show due respect to the departed great personality. The showering of flowers from heaven is a sign of recognition by great demigods, and it should never be compared to the decoration of the dead body. The body of Vishmadev lost in material effects due to being surcharged with spiritual realization, and thus the body was spiritualized as when iron becomes red hot when in contact with the fire. The body of a fully self-realized soul is not therefore accepted as material. Special ceremonies are observed for such a spiritual bodies. Yeah. The respect and the recognition of Vishmadev are never to be imitated by the artificial means, as it has become a fashion to observe the so-called Jayanti ceremony for any and every common man. According to the authorized Shastras, such as Jayanti ceremony for an ordinary man, however exalted he may be materially, is an offense to the Lord because Jayanti is reserved for the day when the Lord appears on the earth. Brahmadev was unique in his activities, and his passing away to the kingdom of the God is also unique. Hari Bol. थैंक यू मेहता जी। ओके, तो ये जो वर्स है यहाँ पे बताया गया है कि जब उसके बाद सबको पता चला कि भीष्मदेव लेफ्ट द बॉडी, तो सब लोगों ने ऑनर किया, दे स्टार्ट ऑनरिंग भीष्मदेव बॉडी। तो उन्होंने क्या किया कि जो मैन और डेमीगॉड साउंडेड ड्रम्स इन ऑनर, and the honest royal order commence demonstration of honor and respect, and आकाश से पुष्प वर्षा स्टार्ट की सारे डेमिगॉड्स ने। ठीक है, तो अभी देखने जाए तो जो जो इस प्रोसेस में है ही नहीं, वो ऐसे सोचेगा कि यार क्या हो रहा है, कोई मर गया है और सब लोग ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, क्या सब पागल हो रखे हैं। लेकिन उनको उन लोगों को ये नहीं पता है कि भीष्मदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द गॉड, और ही जस्ट गेट रीड ऑफ एक्चुअली ही इज द नित्य सेवक ऑफ द कृष्णा। बट यहाँ पे जब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो थोड़ा मटेरियल दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने बॉडी छोड़ दी। ठीक है, तो सबको ऐसा लगता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये मर गए यानी उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन सब लोग एक ऐसा क्यों कर रहे, दे शुड बी शोरो इंस्टेड ऑफ दे, हियर दे जस्ट डूइंग ड्रमिंग इन द ऑनर। बट नॉर्मल लोग होते हैं उनको ऐसा ही होता है कि अ, ये क्या कर रहे हैं, वो सब पागल वगैरह है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने बर्थ और डेथ की साइकिल से मुक्ति मिली थी उनको, भीष्मदेव को। एक्चुअल में वो दिखाने के लिए है, एक्चुअल में तो एज आई सेड अर्लियर कि वो नित्य सेवक है भगवान के। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम लिविंग एंटिटीज का यानी मटेरियली जो अटैच है उन सब का प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो हमें चिंता ही नहीं है कि वी डोंट वांट टू इंक्वायर अबाउट आवर सेल्फ कि हु आर वी। ठीक है, एंड वो भी नहीं पता है कि हम बॉडी है और सोल है, वो कुछ नहीं पता है, और हम उसकी चिंता भी नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हम जैसे हैं हम खुश है। हमें
सेंस ग्रेटिफिकेशन करने आए हैं और वो हम वही करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम पे क्या होता है, डिवोटीज जैसे जो नए नए डिवोटीज बनते हैं और फिर वो फंस जाते हैं कि अरे यार, मैं तो इसमें फंस गया हूँ कि ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और ना मटेरियली सही से कर पा रहा हूँ, और ना स्पिरिचुअली सही से कर पा रहा हूँ। और फिर जब अपने फ्रेंड्स को देखते हैं जो भी मटेरियली ऑपुलेंट होते हैं, तो वो देखते हैं कि यार वो तो कहाँ से कहाँ चला गया और मैं कहाँ पे रह गया, ठीक है। तो एक्चुअल में उसको समझना है तो ऐसे समझो कि जब कोई ट्रेडमिल पे दौड़ता है, तो वो बोलेगा आधा घंटे के बाद कि मैं 3 किलोमीटर दौड़ लिया या 4 किलोमीटर दौड़ लिया। लेकिन जहाँ पे अगर हम देखने जाए तो वो वहां पर 3-4 किलोमीटर दौड़ने के बाद वहीं के वहीं खड़ा है। यानी जो मटेरियल जो नॉन डिवोटीज होते हैं, उनकी हालत यही होती है कि वो कितना भी भाग ले, लेकिन वो वहीं से वहीं रह गए, दे कांट गेट रिड ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। यहाँ पे अभी जब ये सब सबने ऑनर देना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि ऐसा भी नहीं था कि सब लोगों ने ऑनर्स दिया था, ऑनर देना स्टार्ट किया। कुछ साधु ऐसे थे, उन्होंने जो होता है ना कि अ, अ, यार, ये तो भीष्म देव तो ब्रह्मचारी थे। तो फिर उन्होंने अपने भाई के लिए उन भाई के लिए तीन विमन तीन तीन औरतों का अपहरण क्यों किया था। उनका भाई जो विचित्र वीर था, उसको शादी करनी थी, तो भीष्म देव ने अंबालिका और अंबिका तीनों को अपहरण करके लेके आए थे, तब जाके उनकी शादी थी। तो वो बोलते हैं कि यार वो ब्रह्मचारी थे, तो फिर उन्होंने स्त्री को छुआ ही क्यों। ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन। लेकिन जो डिवोटीज होते, जो अच्छे साधु होते, यानी जो भगवान के भक्त होते, उनको पता है होता है कि भीष्मदेव वॉज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ही वॉज द ग्रेट डिवोटीज। और उनको वो भी पता था कि भीष्मदेव इज वन ऑफ द महाजन। और उनकी यहाँ पे बताया गया है कि ही वॉज ऑन द लेवल ऑफ ब्रह्मा, नारद एंड शिवा, ठीक है। तो वो उनको पता है, फिर उनको ये भी पता है कि वो भगवान को कितना प्यार करते थे, कि उनके लिए भगवान क्या थे, उन्होंने भगवान की कितनी सेवा की, सारा सारा कुछ, ठीक है। अभी आगे देखने जाए तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि डेमिगॉड्स ने फूलों फूलों की वर्षा की आकाश से, ठीक है। अभी तो अभी हमारे टाइम में क्या हो रहा है कि वो हेलीकॉप्टर लेके आएंगे, उससे करेंगे, लेकिन वहां पे उस टाइम पर वैसा नहीं था। वो दे कैन ट्रैवल इन द स्काई एज वेल, तो वहां से फूलों की वर्षा हो रही थी, ठीक है। अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार डेमिगॉड होते हैं क्या, क्योंकि नासा 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 है, उन्होंने जब मून मिशन किया था, तो देश उनको वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई वहां पर तो कोई नहीं है, वहां पर तो कोई नहीं है, मून इज अ बैरन लैंड, ठीक है। लेकिन उनको वो नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसके लिए भी वो दृष्टि चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे एक चीज बताता हूँ कि जब ये राजसूय यज्ञ होने वाला था, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला सबको, अपने भाइयों को, कि भाई आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओ घोड़ा लेके, और फिर देखो कि अगर किसी को फाइट करनी है तो फिर युद्ध जीतेंगे। और उसके बाद, क्योंकि राजसूय यज्ञ का वही होता है कि सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं पूरे वर्ल्ड के। तो अगर कोई भी एक्सेप्ट करता है चैलेंज, यानी फाइट एक्सेप्ट करता है, तो उनको हराना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बन पाएंगे, ठीक है। तो फिर अर्जुन था, उसको नॉर्थ साइड भेजा गया, और वो जहाँ वहाँ पे कोई हरिवर्स करके कोई जगह है, तो वहाँ पे पहुंचे। और फिर जैसे ही वहाँ पे पहुंचे ना, तो वहाँ से आवाज आई कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से वापस चले जाओ, अगर आप यहाँ पे रहे तो आप और आपकी सेना दोनों मारे जाओगे, ठीक है। और अगर इस जगह में आप एंटर भी हो गए जैसे तैसे करके, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, यानी उसका उसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ नहीं था ना, है। वहां पे सारी चीज जो होनी चाहिए थी वो है, लेकिन वो उनको विजिबल नहीं होगी। जैसे अभी रियल एग्जांपल हम बोले कि भूत प्रेत, हमें भूत प्रेत नहीं दिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमें दिखते हैं, ठीक है। लेकिन भूत प्रेत क्या है? तो जो भूत प्रेत होते हैं, यानी भूत और प्रेत वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। भूत क्या होते हैं?
कि सोल होती है और उसकी सटल बॉडी होती है, उसको मेन बॉडी फिजिकल बॉडी नहीं होती, तो यानी हम उसको नहीं देख सकते। और वो क्या होते हैं, भूत लोग कौन होते, भूत कौन बनते हैं, जो सुसाइड करते हैं, वो सारे भूत बनते हैं। और जो प्रेत होते हैं ना, वो क्या, वो कौन होते हैं कि सोल होती है, सटल बॉडी भी होती है, और वो अभी ट्रांजिशनल बॉडी के साथ है, यानी जैसे बोलते हैं ना कि पितृलोक, यानी जो वेट करते हैं नेक्स्ट बॉडी के लिए, वो प्रेत बोले जाते हैं, ठीक है। हम उन लोगों को नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते कि भाई, हम यहाँ से वी कांट सी एनीवन हु इज लिविंग ऑन सन प्लैनेट और मून प्लैनेट विद अवर बेयर आइज। दूसरा, हम क्या नहीं कर सकते कि वी कांट गो टू द हेवन विद दिस बॉडी, ठीक है। तीसरा, हम क्या नहीं सकते कि हाँ भाई, तीसरा क्या है कि अ, अगर सन और मून पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई नहीं है, नहीं। जो वहां पे, वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो भी जो भी सबको रहना है, तो उसके हिसाब से बॉडी उनको मिली हुई है। जैसे फिश की बात करें तो वो पानी में रह सकती है, हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। और सन सन पे भी लोग है, उसका कोई प्रूफ है तो हाँ है। जैसे सबसे पहली बार भगवत गीता किसको सुनाई थी भगवान ने, सूर्य भगवान को। तो यानी सूर्य भगवान यानी सन की ही बात हो रही है ना, ठीक है। तो वो चीज है। और दूसरा आगे लास्ट बताया गया है कि दस दस यहाँ पे बताया है, दस द बॉडी spiritual realization contact with fire. Okay. The body of Bhismadev lost its material effect due to being surcharged with spiritual realization, and thus the body was spiritualized when the iron become red hot when in the contact of fire. ठीक है। तो भीष्मदेव की बॉडी wasn't a material, it was already a spiritual body। और तो यानी यही चीज है। और लास्ट थिंग है कि हम्म, अ, हम जो भगवान का जो नाम देते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम पर हमें प्रॉब्लम्स आती है, वो हमने देखा है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो अभी जस्ट हमारी क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि भगवान क्या करते हैं कि जो कर्मास होते हैं ना, उसमें भी क्या करते हैं कि अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा। तो बुरे कर्म तो हटा ही देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ कर्मा हमारे रह जाते हैं जब हम डिवोशनल सर्विस स्टार्ट करते हैं। तो वो कैसे कर्मा रह जाते हैं कि जो कर्मा हमें हमारी डिवोशनल सर्विस में आगे ले जाए, यानी ग्रो करे हमारी डिवोशनल सर्विस, वैसे कर्मा भगवान छोड़ देते हैं। तो हम जब बीमार पड़ते हैं तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं इतनी डिवोशनल सर्विस कर रहा हूँ और मैं फिर भी बीमार हो रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज टोटली रॉन्ग, यानी तो हमें वो कभी भी सोचना नहीं चाहिए। और लास्ट में बताया गया है कि ये जो जयंतीज है, तो जयंती अभी भी हमारा आता है, गांधी जयंती भी आती है, सरदार पटेल जयंती आती है। तो एक्चुअली दैट इज नॉट फॉर देम। I should not say in this class, but sorry about that. But yeah, the thing is that यहाँ पे क्या बताया श्रीला प्रभुपाद ने कि जयंती इज रिजर्व फॉर द डे व्हेन द लॉर्ड अपीयर्स ऑन द अर्थ। कहीं पे मैंने सुना भी था, पढ़ा भी है कि इट्स नॉट जस्ट द लॉर्ड हिमसेल्फ, इट इज ऑल्सो फॉर द डिवोटीज एज वेल। जैसे श्रीला प्रभुपाद की जयंती होती है, हरिदास ठाकुर की, सब सबकी, ये जो भी एग्जॉल्टेड डिवोटीज है भगवान के, उन सबकी भी जयंती होती है। क्यों? और जयंती क्यों रिजर्व होती है? क्योंकि क्या होती है कि उनको भगवान ने एम्पावर्ड किया होता है, यानी वो नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं। जैसे प्रभुपाद की बात करें तो एट द एज ऑफ 70 दे लेफ्ट फॉर द न्यूयॉर्क यानी यूएसए, ठीक है। और उसके बाद 14 टाइम्स उन्होंने पूरा ग्लोब का चक्कर लगाया। और मैंने वो भी सुना था कि उनके साथ जो रहते थे कि प्रभुपाद को सारा असिस्ट करे। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि अभी इंडिया में है, ठीक है, फिर इंडिया से चले गए अमेरिका, तो वहां पे जेटलैग लगता है, लेकिन प्रभुपाद को जेटलैग लगता ही नहीं था। और जो उनको हेल्प करवाने जाते थे, जो भी डिसाइपल्स,
तो उनको जेट लैग के कारण वो काम ही नहीं, प्रभुपाद को हेल्प ही नहीं करवा रहे, करवा सकते थे, ठीक है। तो एक ही डिसाइपल था प्रभुपाद का जो मैक्सिमम टिका था, और वो 2 साल तक टिका था। बाकी सब लोग थोड़े थोड़े टाइम में उनके पास रहे, फिर चले जाते, क्योंकि जेट लैग वैसा था कि वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो यानी इस ओर से देखने देखने जाए तो प्रभुपाद वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही वॉज एम्पावर्ड। तो इसकी वजह से ये सारा कुछ कर सकते हैं। So I think that it is for today's. So yani Bhismadev was a unique in his activity, and his passing away to the kingdom of the God is also unique. So see, यहाँ पे प्रभुपाद ने लास्ट लाइन में बता दिया है कि भीष्मदेव की भी एक्टिविटीज यूनिक थी, एंड ही इज पासिंग अवे टू द किंगडम ऑफ गॉड इज आल्सो यूनिक। तो वैसे डिवोटीज के लिए जयंतीज होती है, बाकी यानी जयंती भगवान के लिए और डिवोटीज के लिए ही होती है, बाकी किसी के लिए नहीं होती। अगर वो होती है तो दैट्स नॉट अकॉर्डिंग टू शास्त्रास, ठीक है। ऑलराइट, आई एम स्टॉपिंग हियर, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, यस, कैन आस्क। Prabhuji, in the first verse, you mentioned that you get in association with a first you find a guru, and it's guru's responsibility to give you love for Krishna. But would that be possible at times that we already have a love for Krishna, but the guru is showing just the path to go to Godhead, back to Godhead? Because that's kind of my personal experience. I feel like I already knew Krishna and I already loved him. He was already in my life. It's just that I did not know the direction to where to go. So that sequence can be interchanged, isn't it? That love for Krishna can pre-exist before you find a guru. Am I right? मतलब जी वो क्या होता है कि आपके पुराने लास्ट लाइफ के जो कर्मा रहे होगे, ठीक है, तो उसमें अगर आपको, आप भक्ति के लिए, भक्ति में ऑलरेडी एंगेज थी, ठीक है, तो आपकी वो भक्ति कंटिन्यू रहेगी, यानी जो भगवान के लिए आपको जो भी लव होगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस कोई भी लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम, नेक्स्ट लाइफ टाइम अगर भी होता भी है, तो हमें गुरु मिलेगा। यानी ऐसा ऐसा नहीं है कि यू नीड फर्स्ट गुरु हु कैन गाइड यू इन दिस। और एक्चुअली बेसिकली वैसे वैसे भी होता है कि गुरु हमें हर चीज के लिए चाहिए। हम छोटी चीज भी करें ना, तो उसके लिए हमें गुरु चाहिए, ठीक है। तो आपको कृष्णा का नाम जब बॉर्न हुए उसके बाद जब बोलना स्टार्ट किया, तो किसी ने तो बताया होगा ना कि ही इज कृष्णा, ही इज, तो वो आपके गुरु हो गए उस टाइम, वो आपके गुरु हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो गुरु जी की बात हो रही है यहाँ पे, वो दीक्षा गुरु, यानी इस दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु जो इस प्रोसेस में फुल्ली एंगेज है, वो गुरु की बात हो रही है। तो हाँ, डेफिनेटली गुरु चाहिए ही चाहिए। जब आप छोटे थे तो आप लोग किसी ने बताया होगा, तो वो गुरु जी वही आपके गुरु है, ठीक है ना। That makes absolute sense, Prabhuji. Yeah, that question itself was illogical. I think unless somebody's taught you how to say even the name of Krishna, like you said, you can't. You don't know how to say it even when you're born. So yeah, that makes हम्म। perfect sense. Thank you. ओके, थैंक यू जी। एनीवन एल्स? Very good class, Prabhu. Thank you very much. Very nice. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, देन हरे कृष्णा, सी यू ऑन थर्सडे अगेन। थैंक Hare यू। Krishna, Guru. हरे Thank हरे you. कृष्णा।